مسلمانوں پر قرآن کے 4 حقوق ہیں، 4 حق ہیں، رائٹس ہیں۔ اول کہ قرآن کو اچھا اور تجوید سے پڑھنا، دوسرا قرآن کو سمجھنا، تیسرا قرآن کی سمجھی کی باتوں پر عمل کرنا، چوتھا اس قرآن کے میسج کو، پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا۔ یہ ہم پر حق ہے قرآن کا۔ مگر میری تمنا یہ ہے کہ اچھا مدرسہ بننا، اچھا مدرسہ، اچھی تعلیم ہو، اچھی تربیت بھی ہو، تو ایک چھوٹا کمرہ کرایہ کرنے کو 13 میں شروع کرے۔ مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا مجھے، اللہ کی مدد میرے ساتھ شامل حال رہی، میرے والدین کی دعا، میرے اساتذہ کی دعا، اور میرے تمام جو یہاں دوست موجود ہیں، جو موجود نہیں ہیں، مستقل میرے دوستوں کا مجھے ہر اعتبار سے تعاون رہا اور ہے، امید ہے کہ آئندہ بھی رہے گا۔ مفتی صاحب بہت اچھا ہے کر رہی، بہت ابھی اللہ ان کو اور کامیاب بنا دے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق اللہ العظیم۔ دوستوں کے ساتھ جیسے ایک منظر نظر آ رہا ہے ہمارے نوجوان علماء کرام کا، ان سب کو لے کر ایک کوشش انہوں نے کی، یہاں ایک مدرسہ قائم کیا، بچیوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، چھوٹے بچوں کے لیے بھی، بڑی لڑکیوں کے لیے بھی، بالغان کے لیے بھی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ تو ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر علاقے میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم سب کا تعلق قرآن سے صحیح معنوں میں ہو جائے۔ مسلمانوں کا قرآن سے، مسلمانوں پر قرآن کے 4 حقوق ہیں، 4 حق ہیں، رائٹس ہیں۔ اول کہ قرآن کو اچھا اور تجوید سے پڑھنا، دوسرا قرآن کو سمجھنا، تیسرا قرآن کی سمجھی کی باتوں پر عمل کرنا، چوتھا اس قرآن کے میسج کو، پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا۔ یہ ہم پر حق ہے قرآن کا، ہر مسلمان کا۔ جیسے محنت بچوں پہ ہو رہی ہے، آج ان کو مبارکبادیاں دی جا رہی ہیں، ان کا اعزاز و اکرام اور ان کو آنر کیا جا رہا ہے، یہ صرف بچوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جن پر اسلام کے، دین کے احکامات ضروری ہو چکے ہیں، وہ مکلف ہو چکے ہیں، دین پر پابندی اور عمل ان کے لیے لازمی ہو چکا ہے، ان کو تو پہلے نمبر پر ہی قرآن کو سیکھنا چاہیے، قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو جی ہم تو نہیں پڑھے، ہمارے بچوں کو پڑھا دیں گے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں پڑھے، ہمارے بچوں کو پڑھا دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ہم تو نہیں پڑھے شروع میں، اب بھی نہیں پڑھیں گے، اب بچوں کو پڑھا دیا تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہو گیا۔ نہیں، بچوں کو پڑھانا الگ چیز ہے، خود کو پڑھنا یہ الگ چیز ہے، بلکہ یہ پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں پڑھے، ہم تو ہمارے بچوں کو پڑھا دیں گے، ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بھی پڑھائیے، اس سے پہلے آپ بھی پڑھیے۔ ہمارے جتنے مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں، دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں، ہماری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں یہاں، اس علاقے کی اتنا کہ 250 مستورات اس وقت آئی ہوئی ہیں، ان سب کے لیے پہلے نمبر پر قرآن کو اچھا پڑھنا سیکھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے، اور اس قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانا چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے، ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، لازمی ہے، ہم اس کی بھی فکر کریں، اس کی بھی کوشش کریں۔ یہ مجمع جو آج یہاں آیا ہے، کافی دیر سے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میں بھی یہاں آیا تھا، حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب دامت برکاتہم امت فیضہم کا بیان سنیں گے، ان سے استفادہ کریں گے، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، اسی نیت سے آیا تھا، لیکن حضرت اتفاق سے آ نہیں سکے، صحت کی ناسازگی کی وجہ سے کافی کمزوری بھی، ابھی 2-4 دن پہلے بھی ملاقات ہوئی تو بہت کمزوری بھی نظر آ رہی تھی،
अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारे इस इलाके सूबे कर्नाटक के बल्कि मुल्क के एक बड़े मुमताज़ आलिम दीन हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत की सूरत शक्लें पैदा फरमाए। तो बहरहाल मैं भी इस्तिफादे के लिए आया था, लेकिन क्या पता कि मुझी को कुछ कहने की का हुक्म मिल गया, तो मैंने कुछ बातें जो ज़रूरत की समझा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। मैं कोई लंबी तकरीर नहीं करूँगा, बस यही मेरी गुजारिश है और मैं यही कोशिश करूँगा कहने की। आप हज़रात से तमन्ना भी रखूँगा, उम्मीद भी रखूँगा, दरख्वास्त भी करूँगा कि हम सब आज इस कुरान की महफिल और कुरान की मजलिस वाले जलसे में शरीक होकर ये नियत कर लें कि हम इंशाअल्लाह आज से कुरान को अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे। हमारी हर गली में इस तरह के मदरसे हो, तालीमी बालिगान का निज़ाम हो, मस्तूरात की तालीम का इंतज़ाम हो, ये बहुत ज़रूरी है। इस पर हमें जोर भी देना चाहिए और हम में से हर एक की इसकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम में से हर एक को अच्छा कुरान पढ़ना आ जाए। अल्लाह ताला हम सब के आज के जमा होने को, कहने सुनने को, पढ़ने पढ़ाने को बेइंतहा कबूल फरमाए। जो लोग यहाँ आए हैं उनको कबूल फरमाए और जो इस जलसे की खबरों को सुनकर खुश हो रहे हैं उनको भी कबूल फरमाए। तो किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके, अल्लाह ताला उनको भी कबूल फरमाए। जितने शरीक हैं पूरा इस महल्ले को अल्लाह ताला अपनी बरकतों से, रहमतों से माला माल फरमाए। अल्लाह हम सब को भी इसके सदक़े में हम सब को भी कबूल फरमाए और हम सब के लिए अल्लाह ताला खैर के, आफियत के, राहत के, रहमत के दरवाज़ों के खोलने के फैसले फरमाए। मैं इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि अज़ीज़ मोहतरम मुफ्ती उमर फारूक साहब ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया, बड़े मजबे को जमा किया, बड़ी मेहनत और कुर्बानी के साथ बच्चों को पढ़ने पढ़ाने का एक इंतज़ाम किया और इनको, इनके साथियों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। यहाँ आने की दावत भी दी मुझे और मुझसे कुछ कहने के लिए का भी हुक्म दिया। मैं इसके लिए भी उनका शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबादी देता हूँ कि जो काम किया है आपने बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह ताला इस तरह और भी दूसरों को इस तरह के काम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सबका, हमारे दोस्तों का, यहाँ जितने हजरात स्टेज पर उलमा तशरीफ़ रखते हैं और हमारे सियासी कायदीन, इन सब का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे समा खराशी का मौका भी दिया और हमारी बातों को सुनते रहे। हमारी अगर कोई बात खैर की निकली है तो अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे मुफ्ती साहब का इफ्ताह होने के बाद जब आए तो बहुत जगह से बुलावा आया उनको, किताबत के लिए, इमामत के लिए, पढ़ाने के लिए। मेरे से मशवरा करे उन्होंने, भाई क्या करना, मैं कैसा करूँ? तो बोला भाई देख, रोटी का मालिक अल्लाह, अल्लाह पालने वाला, किसी भी छोड़ता नहीं है। मगर मेरी तमन्ना यह है कि अच्छा मदरसा हो हमारे इलाके में, अच्छा मदरसा, अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत भी हो। तो एक छोटा कमरा किराया के लोगों 13 रात में शुरू करे तो फिर वो भी जगह बस हो गई। एक और जगह बड़ा घर लिए, वो घर डिबालिश का था, उन्हें 1 साल का टाइम दिया हमने। तो उसके बाद मैं फिर क्या करा, 1 साल वक्त होगा, हमारा पास क्या इंतजाम नहीं हुआ। एक जगह लिए थे, जगह हम हाथ से निकल गई वो। तो आखिर में फैसला करें जो हमारा घर, जो मदरसा है वो हमारा घर था। सो जिसमें हमारी पूरी फैमिली थी, 5-4 बच्चे, हमारी सब पूरी फैमिली थी, बच्ची थी हमारी। तो मशवरा कर हमने क्या करें, बच्चे बाहर मोहल्ले को नहीं आते तो उसी मदरसे को हमें क्या करें, घर को मदरसा बना दें। हमें किराए घर को चले गए हमें हमारे। उसके बाद फिर वो मुस्तफ बोले ना बाईशा बच्चे गिर गए, तो उसके बाद फिर मदरसा बनने का प्रोग्राम करे। हमारे पास तो कुछ भी घर के अलावा चाहिए हमारे पास जैसा, तो हिम्मत करे, बैठ कर बात करे। एक जेवर था मुस्तफ की हवेली का, उसे लेकर बिका को 80,000 का खरीदा है हमारे पास। तो 80,000 पर लेकर घर मालिश कर डाले और डबालिश हो घर अब कहीं नहीं बचा। तो उसके बाद फिर हमें क्या करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारे बस का हमें लगा डाले, घर था लगा डाले, जो जेवर पैसा था लगा डाले, हमें अपने बस का कर डाले, अब तो अपने बस का कर ले। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ की बड़ी मेहनत है इसके अंदर, हमारे बच्चे की बहुत मेहनत है। और मैं यहाँ का काम संभालता, पूरा मदरसा काम, तामीर का काम संभालता, मैं बाहर का पूरा इंतजाम कर दे। तो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह आज 2010 से आज तक हमारा मदरसा चले हमारा। आज हमारे माशाल्लाह बच्चे मदरसे में जो है, आज भी उनके वालिदैन हमारे मदरसे की तारीफ करते।
फिर जब से हमें तो बच्चे में मदरसा को डाले, तालीम के साथ साथ तुम्हारा तरबियत भी है तुम्हारा, और बड़ी गहरी निगाह रखती, खास कर लड़की के ऊपर। बाखर वक्त तय है हमारा, सुबह के 6:30 बजे मदरसा शुरू होता है, 6 बजे से गिरता वालती हम 6 बजे तक किसी बच्ची को नहीं लेते हैं, या तो फिर इसके मैं अपनी अब्बा बुला लगा हमारे पास बच्चे बोलना की वजह ले तुम्हारे पास, और बच्चों को बहुत हमारे पास। ये मदरसा कब से कायम हुआ? मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कायम होकर 12 साल हो गए, ये 13वां साल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हम लोग जब मदरसा शुरू करे थे आज के 13 साल पहले, बिल्कुल छोटा 10 को 10 एक कमरा लेकर किराए पर शुरू किए थे। फिर 1-2 साल के बाद वो जो कमरा हम लोग लेकर शुरू किए थे वो छोटा पड़ गया, बच्चों की तादाद ज़्यादा हो गई, तो फिर बिल्कुल बाजू में हमने बिल्कुल फिर 10 को 10 एक कमरा लेकर के वो 2 क्लासों की शक्ल में चलते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक 4 साल के बाद वो जगह भी हमारे लिए छोटी हो गई, तो फिर हम लोग और एक जगह किराए पर लेकर वहाँ एक तकरीबन 4 साल हम लोग काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ख़ास जगह पर हम लोगों ने ये तामीरी काम किया है। अब तकरीबन हमारे यहाँ 300 बच्चे बच्चियाँ पढ़ती हैं, पूरा 4 फ्लोर हमारा मदरसा है, ऊपर के 2 फ्लोर में पूरे बच्चियाँ पढ़ती हैं, उनको पढ़ाने वाली पूरी मुअल्लिमात हैं, छोटी से छोटी बच्ची भी ऊपर मुअल्लिमात के पास ही पढ़ती है, नीचे के जो 2 फ्लोर हैं उसमें पूरे बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने वाले पूरे असातिज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटी बच्ची भी अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद के पास नहीं पढ़ती, पूरे बच्चियाँ मुअल्लिमा के पास, पूरे बच्चे असातिज़ा के पास पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ बेंगलुरु की हद तक है या बच्चियाँ या बच्चे या बाहर के भी हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे इलाके की है, ये मकतब है ना, सुबह दोपहर शाम है, तकरीबन 16 बैचेस हमारे चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रहने का ख्याल? नहीं, बिल्कुल रहने का नहीं है हमारे पास, इसलिए कि हमारा अकाबिरीन का कहना यह है कि मकातिब की जो ये होती है उसका जो मैदान होता है वो बहुत अच्छा और मजबूत होना चाहिए, तो इसलिए हम लोगों का जोर इस बात पर है कि मकातिब मजबूत हो, बेहतर से बेहतर हो हमारे इलाके में। और हमारा इलाका जो है वो पूरे गुंजान आबादी का इलाका है, इसमें जितने भी मकातिब हो कम है, बशर्ते कि मकातिब मजबूत हो, उसका नज़्म व नस्क अच्छा हो, तालीम मेयार हो, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। बादरपुरा यानी एक हसास जाना माना इलाका जाना जाता है, तो किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको, और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब मदरसा में शक्ल में देखने को मिल रहा है? मुश्किलात का सामना तो करना पड़ा मुझे, अल्लाह की मदद मेरे साथ शामिल हाल रही, मेरे वालिदैन की दुआ, मेरे असातिज़ा की दुआ, और मेरे तमाम जो यहाँ दोस्त मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं है, मुस्तकिल मेरे दोस्तों का मुझे हर एतबार से ताउन रहा और है, उम्मीद है कि आइंदा भी रहेगा। बस वो मुश्किलात पर जाना, उसके बारे में बोलना मैं मुनासिब नहीं समझता, बस आप भी दुआ करें अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए बस। कितने हाफिज़ अब तक हुए हैं? नहीं, हमारे पास हिफ्ज़ नहीं है, अलबत्ता जिन बच्चों ने कुरान करीम नाज़िरा मुकम्मल कर लिया है, मगर उनके वालिदैन की ख्वाहिश है कि वो मदरसा मकतब जाए, उसे रोके नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चों को लेकर के हमने किसी के 7 पढ़े, किसी के 6 पढ़े, किसी के 9 पढ़े, किसी के 2 पढ़े, सूरह रहमान है, सूरह वाक़िया है, सूरह यासीन है, सूरह मुल्क है, इस तरह की जो चुनिंदा सूरतें हैं, मुंतखब सूरतें हैं, उनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे याद करते हैं। आइंदा क्या अज़ाइम रहेंगे? अज़ाइम तो यही है, ब्रांचेस वगैरह अज़ाइम इसी इलाके में और इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। एक हमारा मकतब का मैदान है, दूसरा हमारा सोशल एक्टिविटीज़ भी हमारी रहती है, उसको भी हम लोग आइंदा ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और उसको फैलाने की हमारी कोशिश जारी है। क्या इस दीन के साथ साथ दुनियाई कुछ इल्म देने की कुछ प्लान वगैरह? एक तो हमारे यहाँ दुनियावी जो तालीम है वो ट्यूशन का हमारा इरादा है अभी। नेक्स्ट हमारे पास जो तामीर है तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 4 फ्लोर है, दिन का कुछ वक्त इसमें खाली रहता है या कोई मशगूली नहीं रहती, अलबत्ता टेलरिंग सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बच्चियों को, जो बड़ी मस्तूरात है उनके लिए भी, जो बच्चियाँ बड़ी हैं अभी शादी नहीं हुई उनके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निज़ाम है हमारे यहाँ टेलरिंग सिखाने का, सिखाने वाली मुअल्लिमा आती हैं। उसके अलावा जो जगह खाली रहती है, हमारा इरादा है कि यहाँ बच्चों को ट्यूशन दी जाए और स्कूली तालीम को और यहाँ मेयार को मजबूत करने का हमारा इरादा है। टेलरिंग जो सिखा रहे हैं इसमें गवर्नमेंट के ज़रिए बहुत सारे स्कीम्स वगैरह रहते हैं, इससे कुछ फ़ायदा उठाने की कोशिश की है? नहीं, ऐसा तो कि अब तक हम लोगों ने कोशिश नहीं की है। बस जो लोग आते हैं, जो बच्चियाँ आती हैं, जो मसूरात आती हैं, उनके बस एक फ़ीस लेकर के जो सिखाने वाले हैं तो उनको दे देते हैं, ऐसा है हमारा। ठीक, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी बताइए सर, आज तक़वियतुल कुरान की जानिब से सालाना प्रोग्राम इनेकाद किया गया आप ही के इलाके में, क्या कहेंगे इस मौके पर? अस्सलाम वालेकुम। आज जो है तक़वियतुल कुरान
मदरसा की जानिब से सालाना इनामी इजलास हुआ है, जिसमें हमारे उलमाए कराम मौलाना शब्बीर नदवी साहब और तमाम हमारे हल्के के और तमाम बेंगलुरु से यहाँ पर जुड़े, और बच्चे जो भी तलबा थे उनको एनकरेजमेंट यानी कि उनकी हिम्मत अफजाई और उनको इनाम दिया गया हमारे हल्के में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे उलमाए कराम भी इसमें जुड़े थे, बहुत अच्छा लगा। और कुरान के मामले पर और कुरान की तिलावत पर और कुरान कितना अहमियत हमारी ज़िंदगी में रखता है। हर घर में कुरान है लेकिन उसे खोलने वाले कम हैं, ऐसा हमारे शब्बीर नदवी साहब जो है बयां अपने दिलचस्पी से पढ़े और जो दीन को अच्छी तरह से फैलाए। हमारी असल पहचान जो है वो कुरान ही से है। इस मौके पर मुफ्ती उमर फारूक साहब को क्या कहना चाहिए, क्योंकि आप ही के हल्के में जुड़े हैं, आप ही का हल्का एक सियासी जानी बच्चों को एक अजीब नमूने से जाना जाता है, तो इस मौके पर यहाँ पे एक दीनी माहौल देखने को मिला, इस मौके पर क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के के बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और हर फील्ड में वो आगे हैं, चाहे वो दीन के एतबार से हो, चाहे वो एजुकेशन के एतबार से हो। और हमारे मुफ्ती उमर साहब जो है वो लगातार हम देख रहे हैं कि वो बच्चों को इल्म हासिल कराने में बहुत ही अच्छा उनका एक ये रोल रहा है। और हम लगातार इनके जो भी कार्रवाई, जो भी इनके इजलास होते हैं उस इजलास में हम शरीक होते हैं, और जो है बच्चों की तालीम के लिए भी इनका बहुत बड़ा ताउन रहा है हमारे इलाके के बच्चों के लिए। तो इंशाअल्लाह हम इनके साथ हमेशा से जुड़े हैं और आगे भी इंशाअल्लाह जब तक अल्लाह की मर्ज़ी रहेगी ऐसे अच्छे कामों के लिए चाहे कोई भी करे हम उनके साथ जुड़े रहेंगे। मैं मदरसे में मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, एक भाई को बच्चे एक मर्द बच्चा। माशाल्लाह बच्चे तो पूरा कुरान पूरा आया हो गए, फिर दोहरा लको है बच्चा तो माशाल्लाह कुरान पढ़ लको है, और हज़रत जो भी बोलते हैं काम वो सुनकर बच्चा अमल करता है। और हज़रत हमारे अच्छा अखलाक से बच्चे को तरबियत देकर ये कर 300 बच्चे पढ़ रहे हैं इधर इस खिदमत में। मेरा बच्चा इनाम लेता है और मेरी बच्ची भी इनाम लेता है। क्या खुशी महसूस कर रहे हैं मुफ्ती साहब के वास्ते, क्या पैगाम देंगे? बहुत खुशी हो रही है, इंशाअल्लाह आइंदा माँ बाप को भी ऐसे खुशी मिले। बस। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मदरसे में माहौल बहुत अच्छा है, पढ़ने में तरबियत अच्छी है। हज़रत हर तरह का सिखाई देते हैं, हर तरह का बोल को भी देते हैं। कुरान की तालीम, नमाज की तालीम और दुआएँ, नमाज जनाजा सब ये से जारी हैं। मैं 7 साल से माशाअल्लाह। तो क्या क्या यहाँ पे मुकम्मल करे थे? 7 साल से आ रही हैं। 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पढ़ लिया हूँ, इंशाअल्लाह कुरान ख़त्म करना इंशाअल्लाह पढ़ लिया, 7 में 6 माह पढ़ा। क्या बच्चा तुम्हारा यहाँ मदरसे में पढ़ रहा है आज? अस्सलाम वालेकुम। सैयद समीर, सैयद कबीर, सैयद अजान, उसमें सैयद समीर कुरान पढ़ रही, सैयद कबीर अलहम पढ़ रही, सैयद अजान भी कुरान पढ़ ले को ही बहुत अच्छा पढ़ रही। दूसरी जगह पढ़ते थे और तायनी हाँ बहुत अच्छा पढ़ ले को ही। क्या दीन के साथ साथ तहजीब में भी अच्छा अच्छा है? क्या आज क्या प्रोग्राम था? जलसा मदरसे का अच्छा हुआ। बच्चे तुम्हारे क्या हिस्सा लिए थे? नात लिए थे। बोलना चाहिए मुफ्ती साहब को। मुफ्ती साहब बहुत अच्छा है कर रही, बहुत अभी अल्लाह उनको और कामयाब बना दे।